If you know this major tool, your life will be very much sorted. And if you don't know this particular tool, your life will become so much difficult. So yes, we'll be talking about Python in this particular video on the interview perspective, on the data domain perspective only. And it will be a very short cheat sheet video, basically a cheat video, a one shot video on Python that will be focused mainly upon data domain people, mainly upon because like if anyone says me like 4 साल पहले अगर मेरे को वही कह रहा होता, that is you need to learn Python and you need to learn everything, and these are the difficulties, these are the things, I will be very much scared. So after 4 years of experience, I'll say you that learning full Python is not required. You can just start with the basic things. And what are the basic things that we'll be covering in this particular video? Fundamentals के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे for a data domain. What are the things required, what are the things that will be used. I'll be using Databricks community edition. On that only I'll be coding everything. You can also use Jupyter, you can also use PyCharm, any of your VS Code or anything you can use. You just practice it out, make your notes. I'll be also sharing these codes in the description also, so that it will be easier for you. So let's start with the video, and definitely just comment it down अगर आपको और भी चीज़ें, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 4 years, तो आई थिंक आई एम अ राइट पर्सन टू गाइड यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. दैट इज फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले बात करेंगे. दैट इज पाइथन इज वन ऑफ द मेजर टूल दैट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गेट इनटू डेटा डोमेन, मेजरली डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, and sometimes data analyst. So this is one of the tool that is required for data cleaning, for data processing, and you are using major frameworks also using Python like PySpark, machine learning, and these kind of concepts. So it makes you very easier, and it is one of the most versatile language to work on any type of domain. You can work on web dev, you can work on development, you can work on machine learning, you can work on data science, you can work on data processing, you can work on predicting the models, anything or any type. And many of the, you can also learn DSA from Python also. So it makes the things easier. So let's start with the video. The first thing first, that is we'll start with very basics of Python fundamentals like variable and data types, and we'll be going through the interview types of questions also. That is what kind of type of question can be asked in the interviews, and what type of question I asked as an interviewer in the interviews, because I have taken 50 plus interviews in this particular year in 2024. Definitely I think it is a good a good video. So to start with, let's start understanding the Python basics. That is when you are talking about data types and variables, that is variables in Python. So basically what are variables? Variables are the storage, basically where we store everything, our data, and like temporary storage जहाँ पे हम लोग like memory में store करना है चीज़ें, तो वहाँ पे store कर रहे होते हैं. Suppose I say name is equal to Anurag, that means it is a string type and I am storing in the name variable, and if I want to print it, it will just print my it will just print my this one, that is I think cluster is created. Okay, I can just run it. If I run it, because I have created, I am using Databricks, so it will create one cluster, like I have created one cluster and I run it, it will print like this. And if I want to say that my name is Anurag, my name is, and I want to say like this, so this is also possible. It will just print like this. And in this also I can do multiple things. I'll show you. There is a concepts of format and all. I'll just zoom a bit and I'll show you how it works. So basically if I want to say ki like I want to place here my name is name, and I want to format it, and I want to remove this part and say my name is this, and I am a data engineer, or I want to make this also a variable like role is equal to data engineer, and I want to say that I don't want to print this, I want to print a role here. So that is also possible. And if I run this, so this is what it prints, that is my name is Anurag, and it is called formatting in Python. Like formatting in print, you can format any type of values. You can format variable type, what we say, integer, string, boolean, anything. So if I say, and my age is, say if I say my age is 27, and I am age years old
if I say this is also possible. It will print like this. So this is how a formatting works, and this is how a variables are in Python. It is a very short explanation. I have tried to give you a short explanation, and if I want to format it, it will just do like this. And suppose if I want to say that I want to create a list, I have a skill, like suppose there is a thing called as data structure that is called as list. So I'll say that I want to store all my skills here in this list. I want to say I want to create a list where I will create Python, one of my skill. Next is I want to say my skill is SQL. Next is I want to say my skill is Spark or PySpark or something like that, just for an example, skill. Now if I want to print this, suppose I want to print skill, how it is getting printed, I'll show you firstly, that is SKILL, and it will print like this. That means it will just print the list whatever I have created. But if I want to show like this, that means skills, and I want to join everything my skills with, so I can say that like this, and I want to use join, and I'll just run it, and this is how it looks like. That means skill, it is not skills, it is skill. And if I run this, this is how it looks like. That means I have separated it on basis of comma. I have given skills and I want to join it. I have given the separator as comma, and I have printed this. If I want to print, if I want to show you how it works, if I show like this plus plus plus, just for an example, it will show like this: Python plus 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 SQL plus 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 Spark. So this is how you can do a list. Like I have created a data structure of list, a data type, and these are a type of data, like a string data type, a string data type, a number data type, or a integer data type, or list of a list I have created. That's also I have showed. So this is how you store the data in interview or live scenario use cases. This is how the data will be stored. When you want to fetch from API, it can be in list form, it can be a different form. So this is how you fetch the data from here. Like you will fetch the data from the API. You can print in a join format, print in a directly a format like this or this. So this is how variable in Python looks like. Next thing is if on to conditional, like conditional statements. So I'll try to explain you like this. Basically, suppose I pasted this code. Basically, I have an experience. My age is suppose 27. I say 27. My real age is 27. Okay. So I just print it out here, and like I say that like if my age is less than 25, I am entry level role. If my age is less than equal to 35, I am mid level role. It is a conditional statements. If else, if else, if else. It is very simple. If you are aware of any other programming language, it will definitely help you. Or this is, that means I have given my age, and you can also input your age. If you want to input your age on real time, on dynamic basis, that also you can do. You can just say input. That means I'll say that age is equal to input, enter your age, enter your age, and it will just store and print my age like this. If I do like this, and if I say, it will run it, and it will ask me for input. I'll give 30. It will say entry level. Okay. So by default what happens, I'll give you एक explanation मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ. That is, जब भी आप ऐसे करके ये input लेते हो, तो basically it will be of what type? It will be of, अगर मैं इसको type दिखाऊँ ना, it will be of string type. ठीक है. एज चाहे वो आप नंबर इनपुट ले रहे हो या कुछ भी इनपुट ले रहे हो. ठीक है. तो ये आपका आई जस्ट प्रिंट यू एंड शो यू, प्रिंट इट एंड शो यू. दिस इज टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है. यहाँ पे मैंने कुछ भी प्रिंट किया, सपोज 67 प्रिंट किया, तो स्ट्रिंग टाइप आया. अब मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई नीड टू गिव हेयर लाइक दिस. और अब मैं इसको रन करूंगा. दैट विल गिव मी suppose 27. So it will give me an int class and a mid level role. Now I want to give greater than, suppose मैं 40 साल का देता हूँ. I want to be at 40. So I am senior level role. This is how it looks like, and it is a type of a probable interview level question. That is this one. कि हाँ, if I print this and if I compare it out directly, you will miss this point कि हाँ भाई, it will always give a string type value. So this is how it looks like. This is conditional statements. Next thing is loops. Now if I want to print, suppose I take this skill, that is this one, and I want to print one by one. Suppose this is a skill and I want to like iterate it one by one. So I will say s in from, for s in, sorry,
for there are three major type of loops: for loop, while loop, do while loop. So majorly we use while loop or for loop. So in this case I'll use for loop. As in skill, loop means that I am iterating everything one by one. Like I'll show you, print करना चाह रहा हूँ that my learning like this, एक formatting करना चाह रहा हूँ on that, and I'll say my learning is S. ठीक है. So what will happen? It will just print one by one whatever the things are. Print is not defined. Okay. SSA blunder mistakes I keep doing. So this is how it looks like it has printed everything like one by one. Next thing, if I want to give you an example of while loop, so next thing I'll say that while loop, and I'll say that if I want to count barabar 0, and because in starting in for loop it will start from 0, in while loop you can like iterate it many times, or you don't set a position कि हाँ भाई यहाँ से शुरू करना है. You can just give it in the initial part and you say like this, count less than 3, something like this. You give the condition here. Next thing you say that iteration. Just for an example I'll show you कि हाँ like how it looks like. Iteration and count, and I'll say कि count को increase भी करते रहो. After this count plus बराबर 1. It is a like type of an increment where that means count is equal to count plus 1. That means it can be also written as count is equal to count plus 1. That means it can be also written as, but I have written like this. I'll just run it. Ignore the first part. This is the second part, that is 0, 1, 2. After 2 it will not run. If I give it equal to, now it will run. Now it will say 3 also. Now if I give greater than, it will fail because it is an infinite loop. It is an infinite loop, and count is greater than 3. I'll say 4. It will keep reiterating. It will keep iterating 4, 5, 6, 7, 8. It will keep iterating like this. So that means it is an infinite loop. I have not given a proper condition. That's why it shows like this. That means it is done. That is loops. Next thing is function. After this, I'll tell you about डेटा, पाइथन फॉर डेटा इंजीनियरिंग मेजरली. नाउ वी हैव कवर्ड मेजर थिंग्स, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब बता दी. अब मेजरली हम लोग जाएंगे पाइथन फॉर डेटा इंजीनियरिंग. सो बेसिकली इन द फंक्शन पार्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन मेक योर कोड वेरी रीयूजेबल. सपोज आई हैव रिटन सम ऑफ द पार्ट ऑफ द कोड एंड आई वॉन्ट टू यूज दिस पर्टिकुलर कैलकुलेट फंक्शन और मैक्सिमाइज फंक्शन और डुप्लीकेट फंक्शन, समथिंग लाइक दैट मल्टीपल टाइम्स. तो मैं क्या करूँगा, आई विल मेक अ फंक्शन और उसको मैं इनपुट देता रहूँगा और वो वहाँ पे प्रिंट होता रहेगा. मतलब वो अपना रीयूज करके मेरे को वैल्यू देगा. आई जस्ट प्रिंट इट आउट, आई जस्ट रिटर्न इट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैलकुलेट बोनस करके एक फंक्शन बनाया. आई वांट टू कैलकुलेट द बोनस ऑफ द थिंग्स. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया एंड रिटर्न द whatever the salary it is taking, I'll just return it out. So this is how it looks कि हाँ मैंने कैलकुलेट किया एंड इसमें पास किया दो वैल्यूज, दैट इज सैलरी एंड बोनस परसेंटेज. तो ये जब मैं रन करता हूँ इट विल गिव मी अ बोनस परसेंटेज. आई कैन इवेल्युएट द वैल्यू. आई कैन मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि सपोज आई एम हैविंग 1 लाख सैलरी, तो 1 लाख का 10,000 बनेगा, 10,000 मेरे को बोनस आ जाएगा. एंड सपोज मैं बोनस बढ़ाना भी चाहता हूँ तो आई कैन इंक्रीज द बोनस फ्रॉम हेयर एंड विल डायरेक्टली गिव मी द एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर. मैं इसको डायनेमिक बना सकता हूँ. हाउ, जस्ट क्रिएट एन इनपुट स्टेटमेंट. इनपुट में मैं सैलरी और बोनस दोनों इनपुट दूंगा यहाँ पे, उसके बाद फिर वो वहाँ प्रिंट होगा तो ये डायनेमिक हो जाएगा. दिस इज हाउ मतलब फंक्शंस काम करते हैं. तो ये मेजर हो गया कि हाँ फ्रीक्वेंटली हम लोग ETL पाइपलाइंस और डेटा पाइपलाइंस कॉल्स में हम लोग फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, मतलब to make the code very reusable, very much dynamic and very much user friendly. ठीक है, तो ये चीज है. नेक्स्ट थिंग इज अब आ जाता है दैट इज फाइल हैंडलिंग. सो मोस्टली whenever you are working on a data pipeline or a data engineering project or a data analyst project, anything, तो there are types of the data. like suppose हमें इनपुट करना पड़ता है डेटा और हमें पार्केट फाइल इनपुट करनी है और हमें CSV फाइल इनपुट करनी है, टेक्स्ट फाइल इनपुट करनी है. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम data.txt ओपन कर रहे हैं. ओपन करने के बाद राइट फॉर्मेट में इसको ओपन कर रहे हैं. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे राइट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सैंपल डेटा जो भी है आई एम राइटिंग इट आउट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे जब रन करूंगा तो आई थिंक इट विल गिव मी, एंड यहाँ पे मैंने ये दिया एंड यहाँ पे इसको रीड कर लिया. मतलब ये फाइल मेरे पास वैसे है तो नहीं, बट इट विल क्रिएट इट एंड इट विल गिव इट. तो अब मैं सैंपल डेटा जब भी यहाँ पे ओपन करूंगा इट विल जस्ट राइट इट, ओपन करेगा, राइट करेगा, उसके बाद मेरे को रिटर्न कर देगा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसमें मैंने विद ओपन, दिस इज द
फंक्शन है बेसिकली जो ओपन करता है फाइल को, उसके बाद यहाँ पे आपको रिटर्न दे देता है। फाइल एक डेटा टाइप बेसिकली है। डेटा टाइप क्या, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो एज फाइल। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फाइल क्लास का। तो यहाँ पे आपको फाइल डॉट यहाँ पे एफ कह देता हूँ, ए कह देता हूँ, तो यहाँ पे भी ए यूज़ करना है, यहाँ पे भी ए यूज़ करना है, यहाँ पे भी ए यूज़ करना है। एंड अब फिर से चलाएंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मतलब फिर से वो प्रिंट हो जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट थिंग इज पैंडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा मैनिपुलेशन जो हम लोग लाइव में कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज पांडास का, बिकॉज एसेंशियल क्लीनिंग वगैरह कहीं पे डुप्लीकेट्स आ गए, कहीं प्रॉब्लम आ गया तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पांडास को। सबसे पहले हम लोग एक डेटा सेट लोड कर रहे हैं, दैट इज एक डेटा सेट है जिसमें जॉन और अनुराग लिखा हुआ है, एज हमारे लिखे हुए हैं, भाई मेरा एज बदलो यार, एज लिखा हुआ है, सैलरीज लिखे हुए हैं, सपोज मेरी 85,000 सैलरी है वो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने डीएफ बनाया, एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ जस्ट आई वांट टू डिवाइड एवरीथिंग एंड वांट टू गिव सैलरी इन लैक्स, मतलब लैक्स में मेरे को सैलरी देनी है। 0.85 मेरी सैलरी आ गई, आ गई। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे क्या हुआ, एक नया रो कैलकुलेट हुआ, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक डेटा सेट बनाया, एक ट्रांसफॉर्म किया कुछ को एंड डेटा को मैनिपुलेट किया एंड वहां पे मैंने प्रिंट कर दिया, ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा सेट। डेटा सेट में अपने कुछ ऐड करना, कुछ माइनस करना, कॉलम्स ऐड करना, कुछ कैलकुलेशन करके प्रिंट करना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ फिल्टर करके रखना, डेटा सेट्स को कुछ मैनिपुलेट करके हटाना, डुप्लीकेट्स डिलीट करना, डुप्लीकेट्स को ऐड करना, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। दीज ऑल आर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सारी चीजें हम लोग पाइथन के थ्रू कर रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, वेरिएबल से, एंड 15 मिनट के अंदर अंदर आपको यहां तक पहुंचा दिया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशंस पे, डेटा सेट्स पे, ठीक है। तो इट इज वेरी फास्ट। तो कोशिश कर रहा हूं मैं कि हाँ लाइक 20 मिनट के अंदर आपको मेन चीजें आपको एक्सपेक्ट पता चल जाए। नेक्स्ट थिंग इज एपीआईज। जब भी आप काम कर रहे होते हो वर्किंग विद एपीआईज, तो मेजरली क्या होता है, एपीआईज आर वेरी कॉमन थिंग व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन रियल टाइम पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। तो आपको क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मतलब आप एपीआईज से आपको डेटा फेच करना रहता है रियल टाइम में, बिकॉज एपीआईज आर जहां से रियल टाइम में डेटा फेच होता है, रियल टाइम में डेटा चेंज होता रहता है। तो रिक्वेस्ट एक ये है दैट लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसके थ्रू आप यूआरएल से रिक्वेस्ट कर सकते हो डेटा, एक रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। एक एग्जांपल अगर यहाँ पे दे रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, आई विल नॉट रन दिस बिकॉज इसको रन करेंगे तो फेल होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर यूआरएल, ठीक है, तो फेल हो जाएगा कनेक्शन एरर से। तो यहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर एपीआई यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स स्टेटस कोड मेरे को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर स्टेटस कोड 200 है, दैट मींस डेटा इज फेच सक्सेसफुली, अदरवाइज इट विल जस्ट थ्रो एन एरर। यहाँ पे हम लोग इफ ब्लॉक, कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन भी लगा सकते हैं, बट मैंने इफ एल्स लगा के सिंपल सा यहाँ पे बता दिया है। दैट मींस यहाँ पे एपीआई के थ्रू हम लोग कैसे फेच कर रहे होते हैं वो डेटा कि हाँ यूआरएल लिख दिया, एक रेस्पॉन्स मेरे को सेलेक्ट करना था, यूआरएल के थ्रू वो रेस्पॉन्स आता है और उस रेस्पॉन्स से मेरे को स्टेटस कोड चेक करना है कि डेटा सही से फेच आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां से अगर फेच आउट सही से हो गया तो वो उठा के जस्ट एल्स इफ सक्सेसफुली फेच हो गया एंड वहां पे प्रिंट कर दूंगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद फिर पाइस्पार्क के बारे में, पाइस्पार्क के बारे में 2-3 चीजें देख लेते हैं। दैट इज पाइस्पार्क, सबसे पहली चीज तो अगर इफ यू आर हैविंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा, तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग आपको स्पार्क के थ्रू करनी होती है। इसी वजह से मैं इस पे बता रहा हूं आपको। दैट मींस कि हमारा यहाँ पे क्लस्टर एक ऑन है। ये क्लस्टर्स आप अगर आपको सीखना है इसके बारे में भी, तो आपको डेटाब्रिक्स पे या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना कंप्यूट बना सको। दैट मीन्स आपको स्पार्क का कंप्यूट, ये कम्युनिटी एडिशन है, फ्री में अपना अकाउंट बनाओ। कम्युनिटी एडिशन में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई है, कैसे बनाना है अपने मेरे चैनल पे है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी डेटा इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट का वो दिया है, प्लेलिस्ट दिया है, उसमें जाके देखोगे उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि भाई मेरे को यहाँ पे पाइस्पार्क का मैंने एक सेशन बनाया। वैसे तो आपको डेटाब्रिक्स के अंदर हमेशा सेशन मिलेगा, बट मैंने यहाँ पे बना दिया कि हाँ मान लो जुपिटर पे यूज़ कर रहे हो तो वो यहाँ पे इनिशियलाइज किया सेशन को कि हाँ मैंने एक ऐप नेम क्रिएट किया, एग्जाम्पल नहीं, सपोज मैं कह देता हूँ पाइथन कोड, ठीक है, पाइथन कोड या डेटा पाइपलाइन। ये जस्ट आपका वो रहता है, दैट मीन्स आपके ऐप का नाम रहता है जिसके थ्रू आपका ऐप क्रिएट होता है, या अगर क्रिएटेड ऑलरेडी है तो उसका नाम बस फेच हो जाएगा, उसका सेशन फेच हो जाएगा वहां से। वहां पे क्रिएट फिर से नया नहीं करेगा। अगर आपका प्रेजेंट है ऑलरेडी वहां से सेशन फेच कर लेगा, अदरवाइज फिर से क्रिएट कर देगा, ठीक है, अगर प्रेजेंट ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रीड किया एक सीएसवी फाइल, दैट मीन्स कोई भी सीएसवी फाइल यहाँ पे लोडेड होगी। अगर मान लो यहाँ पे लोडेड है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से फेच आउट कर सकता हूँ। सपोज test.csv है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे पाथ उठा लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे test.csv दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई हेडर इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स कि हेडर जो है मेरा पहला लाइन जो है वो मेरा हेडर है, तो उसको इग्नोर करो, उसको हेडर बना दो। नेम, उसके बाद फिर एज, ये सब हेडर है। उसके बाद इन्फर स्कीमा का मतलब क्या है कि अगर मान लो
कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को बना दो, स्ट्रिंग बना दो उस कॉलम को, इंट है तो इंट बना दो उस कॉलम को, अपने आप मतलब डेटा से ही देख लो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए। उसके बाद फिल्टर डेटा यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये लगा दिया। तो यहाँ पे जस्ट को रन करेंगे, डीएफ एक बनाएगा, फिल्टर डीएफ बनाएगा, फिल्टर डीएफ डॉट शो, दैट मीन्स इट विल जस्ट प्रिंट इट आउट। तो ये पाथ नॉट फाउंड बोल रहा है भाई इट इज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट एक अपलोड कर दिया यहाँ पे नेटफ्लिक्स का CSV। उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। स्पार्क की जॉब यहाँ पे चलती है क्योंकि वहाँ पे शो हो रहा है बेसिकली, दैट मीन्स लेजी एवेल्युएशन नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं बिकॉज ये कॉलम ही नहीं है यहाँ पे। तो दैट्स वाई हम जस्ट लाइक वो एक्सप्लेनेशन के लिए रख लेते हैं, बट इसको हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। एंड आई जस्ट प्रिंट इट कि हाँ वो हाउ इट लुक्स लाइक। तो डीएफ हुआ, डीएफ डॉट शो जब हम लोग करते हैं या डीएफ डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले डीएफ, तो दैट मीन्स इट इज जस्ट प्रिंट इट आउट, मतलब प्रिंट होगा यहाँ पे एंड आई कैन जस्ट सी कि हाँ हाउ माई डेटा लुक्स लाइक। तो यहाँ पे मेरे प्रिंट हो गया, टाइटल और वगैरह वगैरह सब कुछ प्रिंट हो गया। तो अगर मेरे को यहाँ पे फिल्टर या सिलेक्शन वगैरह करना है तो आई कैन जस्ट डू डायरेक्टली फ्रॉम हेयर, दैट इज डीएफ डॉट फिल्टर, डीएफ डॉट शो, डीएफ डॉट सेलेक्ट, एनीथिंग। दैट मीन्स इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आप डेटा पे आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप क्लीनिंग कर रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिल्टरिंग द डेटा, बिल्डिंग द पाइपलाइन, ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा एंड मेकिंग द डेटा सेट डिफरेंट। मतलब आप प्रीवियस डेटा सेट से कुछ अपडेट कर रहे हो, कुछ चीजें हटा रहे हो। दैट इज अ टाइप ऑफ थिंग दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के कुछ बेसिक क्वेश्चन, कॉमन कोडिंग क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रिवर्सिंग अ नंबर, ठीक है। अब मान लो इंटरव्यू में आप गए तो आपको ना बेसिकली मैं जो पूछता हूँ वो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो टेस्ट योर पाइथन स्किल्स, जस्ट बेसिक पाइथन स्किल्स। अगर मान लो कोई 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, सिंपल सा पाइथन स्किल मैं पूछ लेता हूँ, दैट इज अगर रिवर्स करना है नंबर को तो कैसे करेगा, मतलब कोई डिजिट को। तो डेटा इंजीनियर है तो डेटा इंजीनियर को उल्टा कर देगा ऐसे करके, सिंपल लिस्ट क्या कहते हैं इसको, स्लाइसिंग कहते हैं इसको आई थिंक, हाँ स्लाइसिंग को यूज करके, लिस्ट स्लाइसिंग को यूज करके यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। और टू फाइंड अ डुप्लीकेट इन द लिस्ट, सपोज एक लिस्ट है मेरे पास, मेरे को उसमें डुप्लीकेट फाइंड करने हैं कि भाई मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ उसमें कैसे डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं। तो आई कैन यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेट को यूज करके मैं क्या करूंगा, सेट क्या करता है कि आपके लिस्ट में जो भी डुप्लीकेट्स होंगे उसको रिमूव कर देगा। तो वहां से आप कैसे प्रिंट आउट करके, तो जैसे ही आप 1 1 2 2 देगा तो ये 1 और 2 डुप्लीकेट्स है यहाँ पे। तो एक लिस्ट लिया, लिस्ट पे काउंट लगाया, काउंट से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी काउंट ग्रेटर देन 1 है वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड उसका सेट लगा देगा। तो उसका यहाँ पे 1 1 2 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है तो वहां आ गया, और 1 और 2 बस वहां पे फेच आउट होता है, और उस सेट के अंदर बस 1 और 2 आता है। तो सेट यहाँ पे लेता है एंड यहाँ पे रिटर्न कर देता है। दिस इज हाउ आई प्रिंट माई दिस। एंड इफ आई वांट टू लाइक सपोज मेरे को ये फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू डिक्शनरी के अंदर क्या है। अब लिस्ट है, लिस्ट पे तो हम मैक्स लगा सकते हैं, बट डिक्शनरी के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो लिस्ट हम लोग क्या करेंगे, डॉट गेट होता है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज को उठा रहे होते हैं। डॉट गेट पे लगाओगे, जैसे ही डेटा डिक्शनरी पे आप डॉट गेट लगाओगे सारे वैल्यूज वहां पे प्रिंट हो जाएंगे। या की वैल्यू पेयर होता है तो उसके हिसाब से आप प्रिंट करा सकते हो। उसके डायरेक्टली जब इसको रन करते हो तो इसके बेसिस पे हाईएस्ट वैल्यू जो है स्कोर वो 90 सीक्वल में मिला है, या आप मान लो अगर मान लो 0 होता है इसमें तो मेरे पास स्पार्क का आना चाहिए, तो स्पार्क का है। तो दिस इज वेरी डायनामिक, यहाँ से ऐसे करके प्रिंट हो जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने बहुत कोशिश की 20 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे मेन चीजें एकदम बेसिक से वेरिएबल से स्टार्ट करके डेटा इंजीनियरिंग की चीजों के बारे में थोड़ा रिलेट करके बता दिया, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। नहीं हुई तो कमेंट करके बताना, हुई होगी तो कमेंट करके बताना डेफिनेटली, वो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशनल लगता है। अदर देन दैट मेरे को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी कंटेंट मैं रेगुलर बेसिस पे डालने वाला हूँ। अदर देन दैट हमारा एक व्लॉग चैनल है जहाँ पे हम लोग पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफी चीजें वहां पे डालते हैं, तो वो जरूर फॉलो आउट कर लेना। वहां पे काफी रेलेवेंट चीजें और मजेदार चीजें, घूमने फिरने से रिलेटेड चीजें, लाइफ से अपडेट सब कुछ वहां पे आते रहते हैं। अदर देन दैट हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां पे हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में काफी चीजें हम लोग बात करते हैं। वहां पे 1,35,000 से ऊपर लोग, 1,50,000 होने वाले हैं, तो वहां पे काफी लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। डेफिनेटली आप भी फॉलो आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।